Assalamu alaikum. I hope everyone is all right. Today the topic I'm going to give a lecture on is law of gravitation. But the first thing before starting the lecture is that why are we studying law of gravitation? Well, there are certain phenomena which are occurring around us, and when we observe those phenomena, they force us to think about something about the gravity and all. So, before starting law of gravitation, we should know that what exactly the term force of gravitation or force of gravity, or simply when we say gravity, what does this term means? Basically, gravity is a force due to which every body of the universe attracts every other body. हमारी इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं, तमाम प्लैनेट्स, सन, सब कुछ, हर चीज़ जो है वो दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, एंड वी आर कॉलिंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो हमें क्लैरिटी आ गई है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है. वाई आर वी कॉलिंग दिस लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? The reason for this is that basically Newton was the first person who projected the idea of gravity. Then, on the basis of his law, Newton's third law of motion, on the basis of that law, he had developed Newton's law of gravitation. अब वो किस्सा तो आप सबने सुना ही होगा. How Newton was forced to discuss and develop the theory of gravity. He was sitting under a tree, and suddenly he saw an apple which was falling from the tree. The fall of that apple forced him to think about what is the thing which is forcing the apple to come towards the earth. उसने ये सोचा कि ये जो एप्पल है ये टूट के नीचे क्यों गिरा है. ये राइट साइड पे भी जा सकता था, ये लेफ़्ट साइड पे भी जा सकता था, इवन ये अपवर्ड पे जा सकता था, लेकिन ये नीचे ही क्यों आया. तो उसने सोचा कि ज़रूर इस कायनात में कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है. एंड ही कॉल्ड दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. You can even do an experiment. Hold anything in your hand and then just leave it or throw it. What would happen? It will move towards the ground. You can do it in another way. Take an object in your hand and throw it upward towards the sky. What would happen? By moving to a certain height, after that, it will move towards the ground. फिर अब आपने क्या किया? आपने दो डिफरेंट काम किए. एक दफ़ा आपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ दिया, ज़मीन की तरफ गया. ये बात तो हमें समझ आती है कि हमने छोड़ा ही उसको नीचे की तरफ है तो उसने नीचे ही जाना है. जबकि दूसरा जो काम किया उसमें आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर थ्रोइंग इट अपवर्ड, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो नीचे आ गया. तो अगेन फ्रॉम दीज टू एक्सपेरिमेंट्स और व्हाट यू डिड्यूस, यू ऑल्सो डिड्यूस द सेम थिंग विच न्यूटन पॉइंटेड आउट, एंड दैट वॉज the force of gravity. Now enough of the introduction. Now we will start our law of gravitation, starting with the statement of the law. Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. In parts, we will discuss about each and everything. First of all, जो पहला हिस्सा है हमारी स्टेटमेंट का वो हमें बताता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, इस कायनात की हर चीज़ अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स. एक ख़ास फोर्स लगाती है जिसको मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रही हूँ, which is directly proportional to the product of their masses. ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन ऑब्जेक्ट्स के मैसेस के
प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के एक के सेंटर से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के तक। अब आप क्या करें, आप इस फिगर को देखें, आपको नज़र आ रहा है, यू हैव टू बॉल्स, अ ब्लू बॉल एंड अ ग्रीन बॉल. The mass of this blue ball is m1 and the mass of this green ball is m2. As you can see, m1 is applying a force on m2. F1 force, you can also see the direction of the force as shown in the figure. m2 is also applying a force on m1 which is f2. अब ज़रा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाऊँ. मैंने बोला था कि न्यूटन के थर्ड लॉ की बेस पे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना है, एंड द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ इज़ टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन होता है, और वो जो रिएक्शन होता है वो एक्शन के बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो हमने ये देखा कि जब m1 ने m2 के ऊपर फोर्स लगाई f1, तो ये एक एक्शन फोर्स थी जिसके रिएक्शन में m2 ने m1 के ऊपर एक f2 फोर्स लगाई जो कि रिएक्शन थी, और ये दोनों फोर्सेस एक जितनी थी. पर बात ये है, सवाल ये है कि वो फोर्स कितनी होगी. दैट वी विल सी इन द डेरिवेशन. As you can see, F1 is directly proportional to the product of M1 and M2. दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2, हम इनके मैसेज का प्रोडक्ट लेंगे यानी उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के जो इन दोनों के दरमियान है, या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं. सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2. Now again, the force F is inversely proportional to 1 over r square. हमने जैसे स्टेटमेंट में बोला था कि एक ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारे पास ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल के सेंटर से लेकर ग्रीन बॉल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो r है, उस r के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स. अब इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए इस रिलेशन को एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो, या दो मैग्नेट ले लो आप. ठीक है, जैसे जैसे आप उन दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हो, वट यू आर डूइंग हेयर इज़ यू आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम. आप उनके दरमियान का डिस्टेंस कम कर रहे हो, लेकिन उस डिस्टेंस के कम करने का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है कि जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स ज़्यादा हो रही है. अब एक और काम करो, आप उन दोनों को एक दूसरे से मैग्नेट को दूर ले जाओ. आपने क्या किया, उनके दरमियान का फासला बढ़ाया, यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम. उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो फोर्स उन दोनों के दरमियान है वो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी, वीकर होना शुरू हो जाएगी. अब क्या किया आपने, डिस्टेंस ज़्यादा किया लेकिन फोर्स कम हो गई. तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि जो हमारी फोर्स है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स. Now in the last step what we have done is we had removed the sign of proportionality, and you know very well that whenever we remove the sign of proportionality we have to put the constant on the place of that sign of proportionality to get an equality, to get an expression. So यहाँ हमने क्या किया, हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, और इसको हटाने के बाद बैलेंस आउट करने के लिए हमें उसकी जगह एक कांस्टेंट और एक इक्वालिटी का साइन लगाना पड़ा. The constant which we are using here is universal gravitational constant capital G. ये जो constant हमने यहाँ यूज़ किया कैपिटल G, ये है universal gravitational constant, ये नाम है इस constant का, and its value is fixed everywhere in the earth. आप या अर्थ को छोड़ो, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज़ 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square. Now in this equation, m1 is the mass of this blue ball, or you can say first object, m2 is the mass of the other object, f is the force which is applied by both of the objects, and r is the distance from the center of one object to the center of the other object. Now what would be the effect of this universal gravitational constant on the force of gravity? हमने इस इक्वेशन में कांस्टेंट तो लगा दिया बैलेंस आउट करने के लिए. अब उस कांस्टेंट का इफेक्ट क्या होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व हियर.
जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। -11 के ऊपर अगर आप गौर करो, 10⁻⁻11, ये पावर -11 बहुत स्मॉल है। जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी बाकी सारे फैक्टर्स के साथ, तो ये उसके रिजल्ट को भी स्मॉल कर देगी। सो ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। देखो, दो ऑब्जेक्ट्स, आप दो लोग बैठे हुए हो साथ, आप दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, पर क्या ऐसा हो रहा है कि आप उसके ऊपर आप उसके करीब हो रही हो या वो आपके करीब? ऐसा तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बल्कि आपको तो फोर्स ही फील नहीं हो रही, आपको तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई फोर्स है। रीज़न क्या है? आप दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैस बहुत कम है। हम दो इंसानों की बात करें ना, दोनों का मैस बहुत कम है, तो उसका प्रोडक्ट भी हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं बनेगी। और जब वो सब मल्टीप्लाई होगा इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ, तो जो फोर्स आएगी वो बहुत स्मॉल है। इसीलिए वो स्मॉल फोर्स आपको फील ही नहीं होती, जबकि वो जितनी भी स्मॉल फोर्स है वो वही है जितनी आप एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो और वो दूसरा इंसान आपके ऊपर लगा रहा है। अब हम एग्जांपल थोड़ी चेंज करते हैं। अब हम दो इंसानों के बजाय एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंसान और अर्थ की। इंसान भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है और अर्थ भी इंसान के ऊपर फोर्स लगा रही है, पर यह तो हमें फील होती है। कैसे होती है? हम ज़मीन पे चल फिर रहे हैं, हम कुछ भी हो चीज़, अभी हमने ऊपर की एग्जांपल कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो नीचे की तरफ आया, वो आया ही ज़मीन की तरफ। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स, फिर हमें क्यों, ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये हमें क्यों महसूस हो रही है? द रीज़न फॉर दिस इज़ द मैस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी ग्रेटर। अब उस ग्रेटर मैस के साथ किसी भी आप छोटी सी चीज़ ले रहे हो, उसके मैस को मल्टीप्लाई करोगे तो इन रिटर्न जो भी फोर्स आएगी वो बहुत ग्रेटर होगी, और वो ग्रेटर होने की वजह से हमें वो फोर्स फील होती है। तो अगर हम दो छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिनके मैस बहुत स्मॉल होंगे, तो उनके दरमियान फोर्स बहुत स्मॉल होगी, हमें फील नहीं होगी। लेकिन अगर हम अर्थ के साथ कंपैरिजन करेंगे किसी और ऑब्जेक्ट का, कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ, तो ड्यू टू द ग्रेटर मैस ऑफ द अर्थ, द फोर्स वुड बी अ सिग्निफिकेंट फोर्स विच वी कैन फील इट। एक और बात, ज़मीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो किस वजह से है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, विच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वेट क्या होता है, क्या नहीं होता। एक बीच में बात आ गई कि वो जो वेट होता है किसी भी चीज़ का, वो भी इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की ही वजह से होता है। नाउ द लास्ट थिंग्स आर, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमने इस लॉ को डिस्कस कर लिया है, तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब ये लॉ डेवलप हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड ऐसी हैं जो हमें फोर्स करती थी, या जो जिनको देख के हमारे माइंड में ये बात आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो हमने वो देख लिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इस लॉ में हमने ये भी देख लिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है किस किस केस के अंदर। तो अब इम्पोर्टेंस में भी हम यही देख रहे हैं कि this gravitational force is responsible for binding us to the earth, and it is the same reason behind the motion of the moon around earth। हमने बात की ना, हमने लॉ में यूनिवर्स का वर्ड यूज़ किया, अर्थ का वर्ड यूज़ नहीं किया, यूनिवर्स का वर्ड यूज़ किया। जब हम यूनिवर्स का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स सारे, सन, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे। तो हम बात करें अगर कि प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों मूव करते हैं, सेम रीज़न है, यही फोर्स। फिर अर्थ के अराउंड मून क्यों मूव करता है, यही रीज़न है। सी टाइड्स, इवन जो समंदर में लहरें बनती हैं, उसकी रीज़न भी यही फोर्स है। तो हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा? हमने सबसे पहले न्यूटन ने की ये बात देखी कि उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट की तरफ वो कैसे पहुंचा, फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। आफ्टर डैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट को हमने देखा, फिर उस स्टेटमेंट की बेस पे हमने एक इक्वेशन बनाई, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जो बताता है, डिफ़ाइन करता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। एंड एट द एंड हमने उसके आउटकम्स देखे कि अब हमें पता चल गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो हम अपने अराउंड कहाँ कहाँ किस किस फिनोमेना में ऑब्जर्व कर सकते हैं उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। और ये भी हमने देखा कि कब वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्मॉलर होगी और कब वो बिगर होगी। थैंक यू।